Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good in your life and healthy. So friends, today we are going to discuss about the different types of SAP projects into the industry. So आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कितने तरीके के SAP के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें IT इंडस्ट्रीज काम करती है. So, if you are planning to make your career into SAP as a functional or a technical consultant, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से projects इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट एंड आई इंसिस्ट कि ये वीडियो अंत तक एंड तक ज़रूर देखिएगा. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. The first and the most common project is known as implementation project. आजकल के जार्गन्स में हम इसको ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशंस भी कहते हैं. ये ग्रीन फील्ड मीन्स टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच. जब S4 HANA SAP ने लॉन्च किया, SAP Labs ने लॉन्च किया, तो उसने एक नई टर्मिनोलॉजी बनाई, ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशंस. सो ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशंस मीन्स जो कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, मेजरली कंपनीज नॉट एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज, जो SAP को स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहती है, स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना चाहती है इनटू देयर ओन बिजनेस सो दैट दे कैन रनिंग देयर बिजनेस स्मूथली, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट राइट स्टार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू बिजनेस ब्लूप्रिंट्स अंटिल गो लाइव. सो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स किसी चीज को लगाना, किसी चीज को जीरो से लगाना, स्क्रैच से लगाना. आप इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इनटू अ टीनेज, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव योरसेल्फ इनटू द SAP इंडस्ट्री और आप रात को घर देर से आते हैं, तो आपके फादर ने एक रूल इंप्लीमेंट कर दिया कि रात को 9 बजे से पहले घर में आना है. मतलब एक रूल अप्लाई कर दिया, एक रूल लगा दिया. सेम गोज विद द SAP. सो SAP इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब SAP लगा दिया, SAP स्क्रैच से, जीरो से शुरू कर दिया. तो friends, greenfield implementation is a full cycle project starting from the requirement gathering, where all the consultants gathering the requirements from the business users, then business blueprint documentation, then after that getting the sign off of the users on the business blueprint documents, then after that the configuration, the main configuration and the customization into the SAP systems, then uske baad proper testing. The testing may be the integration testing, the unit testing, the UAT, which is user acceptance testing, then uske baad training to the users, and then finally the go live. So these all are the different phases of the greenfield or the implementation project. Second type of project is a rollout project. Rollout project, आप इसको ऐसे समझिए, the extension of a business. For example, suppose if some company is already having a headquarter into a Germany and now they just wanted to start their operations into India. So it means roll out their operations in India. So in India, when SAP is going to roll out, so you have to implement the local taxes, you have to implement the local business processes, you have to implement local compliances into the SAP. So by this way, you have to do all the things just like implementation. You have to prepare a requirement gathering document, you have to prepare a business blueprint document, you have to prepare testing document, training document, the configurations document. आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, ये सारे processes भी करने होंगे, and finally make the system go live in India. So it means when the go live done, it means that you have done the successful go live of a rollout project. Next type of a project is upgrade project. So friends, technology keeps on changing. So does SAP. So upgrade project means what? To upgrade a system from a older version to a newer version. For example, अगर हम बात करते हैं आपके Android phones की, हम बात करते हैं आपके iPhones की, you have upgraded your latest version into the iOS 18.1. Now the iOS 26.1 is going on. So आपने upgrade किया होगा from 18.1 to 26.1. But यहाँ पर क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड कर देता है.
SAP में कंसल्टेंट्स को करना पड़ता है, बिकॉज SAP इज हैविंग अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ डेटा। जब हम अपग्रेड की बात करते हैं, हम टेक्निकल अपग्रेड्स की बात करते हैं, हम डेटा माइग्रेशन की बात करते हैं, हम सारे कस्टम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, एंड ये इंश्योर करते हैं क्लाइंट के सामने कि all the custom developments, all the data should be properly reflected into the newer system. So this is the upgrade project. Once the organization is live on SAP, so this continuous support and continuous help is required by the organization from the consulting companies. जो भी डे टू डे टास्क होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में कोई इश्यूज आते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में कोई एरर्स आते हैं, जो भी यूजर्स जिन पे काम कर रहे होते हैं, सपोज कोई यूजर्स सेल्स ऑर्डर्स बना रहे हैं, उनको टैक्सेस प्रॉपर्ली उठ के नहीं आ रहा है, कोई एंड यूजर परचेज ऑर्डर बना रहा है बट उनका वेंडर की डिटेल सही से प्रॉपर्ली पॉपुलेट नहीं हो रही हैं, तो जो भी इस तरीके की एरर्स आती हैं जिनको हम लाइव सिनेरियोज में टिकट्स बोलते हैं, इन एरर्स को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट प्रोजेक्ट्स केम इनटू द सिस्टम, इनटू द एग्जिस्टेंस. सो सपोर्ट मींस AMS या AMC या AMS, एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज या एनुअल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स. सो जो भी मेरी एप्लीकेशन है, SAP एप्लीकेशन, उसकी AMC वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे SAP इंप्लीमेंट हुआ है अपने टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को प्रोवाइड करती है. एंड जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होता है, ही इज और द कंपनी, द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज दोज टिकट्स and solve the errors in a particular timelines. The tickets can be prioritized like the P1 priority, the P2 priority, the P3 priority, which is very much into the high impact on a business, that is a P1 priority, medium impact on a business, that is a P2 priority, and the low impact on a business, that is a P3 priority. It depends. So AMS is another form of a project into SAP. Next project is the migration project. इसको हम कन्वर्जन प्रोजेक्ट भी कहते हैं या ब्राउनफील्ड कन्वर्जन प्रोजेक्ट भी कहते हैं. What is exactly a migration project? The migration project or the conversion project is when some company is going from an older version to newer version along with the data. Suppose a company is running on the older version of the SAP ECC 6.0, but now they just wanted to move themselves into the SAP S/4HANA, the latest version. So this kind of a project is called as a brownfield conversion project, जहां पे सारा का सारा डेटा हमको न्यूअर सिस्टम में लेकर के जाना होता है, जहां पे सारे के सारे डेवलपमेंट्स हमें न्यूअर सिस्टम में लेकर के जाने होते हैं, जहां पे हमें सारे के सारे बिजनेस प्रोसेस प्रॉपर टेस्ट करने होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिगरस टेस्टिंग करनी होती है. All the business processes should be working properly into the newer system. एक नया लैंडस्केप भी रेडी करना होता है. लैंडस्केप मीन्स द अलाइनमेंट ऑफ सर्वर्स. वी हैव मेजरली द थ्री काइंड ऑफ सर्वर्स बेसिकली: डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर. इन सर्वर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट और द ब्राउनफील्ड कन्वर्जन प्रोजेक्ट. दीज आर वेरी सेंसिटिव प्रोजेक्ट एंड टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट्स. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द डाउन टाइम. क्लाइंट से हमें इस चीज पे जरूर डिस्कशन कर लेना चाहिए कि हमको कितना डाउन टाइम चाहिए, और क्लाइंट शुड बी एग्री ऑन दिस डाउन टाइम पार्ट. सो फ्रेंड्स, क्विक रिकैप कर लेते हैं. हमने अभी बात की, देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ ए प्रोजेक्ट. S/4HANA से आने से पहले देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ ए प्रोजेक्ट. जब हम S/4HANA जब SAP Labs ने लॉन्च किया तो एक और नया प्रोजेक्ट बन गया, दैट इज ए ब्राउनफील्ड कन्वर्जन प्रोजेक्ट. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 5 मेजर टाइप्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. वन इज द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, another one is the rollout project, third one is the upgrade project, next project is the support project, and the last में हमने बात की brownfield conversion and the migration project. So total हमने ये जाना कि ये 5 तरीके के प्रोजेक्ट्स SAP में होते हैं जिनमें IT इंडस्ट्रीज काम करती हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए.
आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में मुझे अपना नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।